ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। गंजाम कंधमाल बॉर्डर पर कल हुई भीषण मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। यह संयुक्त ऑपरेशन स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के नेतृत्व में ओडिशा पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और डीबीएफ के साथ मिलकर चलाया गया। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी के बाद इलाके की सघन तलाशी ली गई, जिसमें AK-47, SLR, इंसास राइफलें, 2 अतिरिक्त इंसास, एक 303 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों को कंधमाल जिले के रिजर्व ग्राउंड में लाया गया है, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि ओडिशा में नक्सल संगठन का प्रमुख चेहरा और सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके भी मुठभेड़ में मारा गया। गणेश उइके पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। In last couple of days, 24th and 25th, we have a series of encounters in Kandhamal, in which 6 Maoists they have been neutralized, including the top leader of Maoist formation in Odisha, Ganesh Uike, who was the central committee member heading the Naxal outfit in Odisha. So that's a great achievement for our security forces. The operation was a joint operation by our SOG, DBF, CRPF and BSF, and we have also recovered large number of arms and ammunition, also various electronic gadgets, walkie-talkie, mobile detector, and a lot of camp equipment also has been recovered, medical supplies, and this is a great success for all our forces. And we have come here specifically to congratulate our forces who have taken active part in this operation. And in this context, I will request all the Maoists to renounce violence and join the mainstream. Odisha has one of the finest surrender and rehabilitation policy, and they should avail the benefits of that policy and come back to the mainstream. We will provide all the facilities for their surrender and rehabilitation. Do you have a target over 2000? Yes, our Honorable Union Home Minister, he has given us target to eliminate the Naxals by March 2026, and all our security forces, intelligence agencies, we are geared up to achieve that target. How, sir, in health places Maoists are more active? In Odisha, the Maoists are mostly active in Kandhamal district and bordering districts of bordering areas of Kandhamal like Rayagada, Kalahandi, Baud, and so we are conducting our operation. We are focusing our resources in those areas so that we have more meaningful exchange of fires. In the Chhattisgarh, Andhra Pradesh, more operation was there also. Right now, the borders are not so sensitive like earlier. We don't see much movement in Andhra side border. Also, the movement in Chhattisgarh border also has reduced. Regarding Ganesh, sir, 1 crore 10 lakh. Yes, Ganesh was a central committee member and he was carrying a reward of 1.1 crore on his head. So that's a big achievement for our forces. The female and male members in the 6. In these 6, basically on 24th, 2 male Maoists were neutralized, and on 25th, out of 4, 2 male and 2 female Maoists were neutralized. हमारा SIWO का कवर था, वो स्पेसिफिक इंट हमको मिला था। उसके हिसाब से हम 23 टीम्स का एक ऑपरेशन प्लान किए थे। उसमें 20 SOG, 2 CRPF और 1 BSF का शामिल थे। एंड वो 72 आवर्स का एक ऑपरेशन था। उसमें हमको बड़ा सफलता मिला सेकेंड डे में। हमारा उस एरिया में गणेश है करके हमारे पास हिंट था, स्पेसिफिक हिंट था। उसके हिसाब से हम ऑपरेशन प्लान किए थे और एक बड़ा कैडर है वो हमको इनफैक्ट हमारा 31 मार्च 2026 का टारगेट है। इसका हिसाब से हम काम कर रहे थे, तो ये बड़ा सफलता में आई फील। कितने सर नक्सल वहीं पे थे? 6 नक्सल तो मार गया है, लेकिन कितना नक्सल थे और उसको आगे ऑपरेशन कैसे किया जाएगा?
ऑपरेशन कैसे हमारा प्लस प्लान ऑलरेडी रेडी है, किधर किधर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का वैक्यूम था, हमें नया सीओ भी एस्टेब्लिश किया है। रिसेंटली हमारा 4 बीएसएफ का सीओ भी हम एस्टेब्लिश किया है। हमारा अभी कंधमाल में पूरा फोर्टिफाइड है। हम नक्सल के हम आगे सोच के कैसे हम मार पाते हैं उसको, अदरवाइज न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज सरेंडर करवा सकते हैं, ऐसे हम डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। सर यहीं पर 2020 के ऊपर ज़्यादा माओइस्ट थे तो ऐसा बोल रहे थे, कितना चैलेंजिंग था ये? एरिया तो इधर बहुत चैलेंजिंग है कंधमाल में, क्योंकि इधर स्टीप टेरेन है एंड आल्सो इधर फॉरेस्ट भी बहुत है, और उसके बाद ऑपरेशन में तो बहुत चैलेंज तो रहता है। बट फिर भी हमारा फोर्सेस है, एसओजी, डीवीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो लोग इसे ट्रेंड है, इसे डेफिनेटली वो टेरेन में ऑपरेट करने के लिए सशक्त है, और डेफिनेटली हमको और भी बड़ा सफलता दे देंगे। आगे ऑपरेशन जोरदार चलेगा? जोरदार चलेगा। हमारा 31 मार्च का टारगेट है, हम अचीव करेंगे डेफिनेटली। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका है और इससे क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।